Hello, everyone. Thank you so much for coming today. My name is Sachin Bangera, and I am the Vice President of Celebrity and Public Relations at PETA India. A special thanks to Le Sutra for providing this wonderful venue for today's event. And we are here to to unveil our campaign starring Radhika Madan. She needs no introduction. Her work speaks for itself. Breaking all molds, this relentless actor is defining versatility with her diverse and impressive performances in films like Mard Ko Dard Nahi Hota, Pataka, Angrezi Medium, Shiddat, and most recently Kutte. She looks forward to a lot more. Interestingly, it was a film that she turned vegan and has sworn by the same ever since. It gives me immense pleasure to have collaborated with this powerhouse of a performer. So please join me in welcoming Radhika Madan with a huge round of applause. 100 animals a year by simply not eating them. And vegans live far healthier and longer life if you compare it to people who consume meat and dairy products. It was India who introduced the concept of ahimsa to the world, and that simply means not causing any harm to any being. So that is something that I really connected to since the time they're born, because they can't give milk and they're left to starve. So when it comes to, say, eggs, the male chicks are smothered, suffocated, and नहीं चल रहा है कुछ भी बट वो ऐसे नीचे की तरफ कुछ नहीं आएगा बट दिख रहा है एक बार देखें ना प्लीज हमारे देखो Hey, we got it. There you go. So it is. I'm here. I'm look here. Look here, Radhika. Look here. Ready? Yes. Thank you guys. Oh, ready. Go away. Hey, look here. Huh? Thank you. Alright, thank you guys. Thank you so much. Thank you. Chalo. Thank you. Thank you. Sure. Now that deserves another round of applause for Radhika. Radhika, would you please come and unveil your PETA campaign? Of course. Thank you so much, Radhika. Would you please say a few words about this campaign, why you choose to be vegan, and why you choose to support PETA? Being a vegan really changed my life, and I just wanted to share that happiness with you all. And I love animals. I have a dog myself, and that also really changed my life. I think
I got to think about animals more when I had a dog, and I just resonate with Peter's philosophy, and I'm really glad and happy that you guys are doing what you're doing since so many years and create this kind of awareness, and I'm really grateful to be associated with that now. And we are grateful to you for being a part of this campaign and for helping us give out this message on World Environment Day, which is today. So thank you so much for that. Thank you so much. Any questions from the media? किसी को कुछ पूछना है? राधिका, आप बताना चाहेंगे कि कब आपने ये डिसाइड किया कि वीगन बना जाए और इसके पीछे की कहानी कुछ हमें वो वीडियो तो दिख रहा है। जी बिल्कुल। आई थिंक ये अंग्रेज़ी के टाइम की बात है, अंग्रेज़ी मीडियम जब मैं प्रेप कर रही थी जब उसके लिए, तब क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कैरेक्टर के लिए अनलर्न करनी थी, एक 16 साल का किरदार निभाना था, एंड आई थिंक काफ़ी ऑनेस्टी एंड प्योरिटी होती है उस एज में, एंड स्पेशली जो मेरा किरदार था उसमें, सो मुझे बहुत चीज़ें अनलर्न करी थी। आई रिमेंबर मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी, एंड पटाखा के टाइम पे मतलब मैंने बहुत खाया था नॉन वेजिटेरियन बिकॉज माई कैरेक्टर वॉज ऑल्सो एनिमलिस्टिक, एंड जैसे ही अंग्रेज़ी के लिए मैं प्रेप करने लगी, मेरे अंदर से ही कुछ ऐसे आया कि I felt like I don't want to have eggs, I don't want to eat meat, and जैसे ही मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व करा कि जब जब मैं छोड़ती जा रही थी तब तक मेरे थॉट्स काफ़ी क्लियरर होते जा रहे थे। आई वॉज फीलिंग लाइटर, आई वॉज फीलिंग क्लियरर एंड लेस नेगेटिव, a lot of positivity, a lot of purity I could feel inside, and I was like, is it because of the food that I'm consuming? And then मैंने काफ़ी लंबे पीरियड के लिए उसको ऑब्जर्व करा एंड उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखे अपने अंदर, एंड तब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे नहीं खाना, क्योंकि आई बिलीव कि जब भी आप किसी एनिमल को किल कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो उनके अंदर इमोशंस होते हैं, वो जो फियर होता है, वो एनर्जेटिकली आपके अंदर भी आता है जब आप कंज्यूम करते हैं, वो एंग्जाइटी, वो फियर, एंड मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व करा कि जैसे ही मैंने छोड़ा, मेरी एंग्जाइटी, मेरा जितना डर था हर चीज़ को लेके, वो सब रिड्यूस हो गया अपने आप। सो आई थिंक फूड प्लेज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। राधिका, कोई भी आदत जो है वो छोड़ना जी इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है जी क्योंकि हम लंबे समय से एक आदत को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है नॉन वेजिटेरियन से वीगन बनने का, ये डिफिकल्ट था या? आई थिंक जब आपको उसके बेनिफिट्स खुद के अंदर दिख रहे होते हैं तब बहुत ईजी हो जाता है। इट्स लाइक वर्किंग आउट, जब आपको अपने वर्कआउट के रिजल्ट्स दिख रहे होते हैं, आप देखते होंगे कि लोग अडिक्ट हो जाते हैं जिम जाने से। सो आप करते ही रहते हैं वर्कआउट क्योंकि आपको दिख रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या है, यू आर एबल टू ब्रीथ बेटर, यू कैन सी इट इन द मिरर हाउ यू लुकिंग। सेम थिंग इज विद फूड। जब आप एक चीज़, मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि आप अभी छोड़ दीजिए एंड आप वीगन बन जाइए या वेजिटेरियन बन जाइए, मैं ये बोलूँगी कि आप ट्राई करिए फॉर योर सेल्फ, ऑब्जर्व करिए फॉर अ मंथ हाउ यू फील अबाउट इट, एंड खुद से पूछिए सवाल कि क्या मुझे बेटर लग रहा है। मैंने वही सवाल खुद से पूछा था, मैंने ट्राई ही किया था, एंड वही सवाल जब मैंने खुद से पूछा तो मुझे जो जवाब आया वो यही आया कि हाँ, मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है फिजिकली, मेंटली, एंड जब कोई अच्छी चीज़ आपके साथ हो रही होती है तो आई डोंट थिंक कि आप वापस उस बुरी चीज़ के पास जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि यही मेरे लिए सही है। राधिका, आप दिल्ली से हैं और दिल्ली के लोग काफी फूडी होते हैं, जी ऐसा कहा जा सकता है फूडी है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं दिल्ली जाती हूँ तो कभी शूट फूट होती है वहाँ पे, तो मैं 3-4 किलो तो मोटी होके आती हूँ। वैसे क्या खाना पसंद है? माँ के हाथ के छोले भटूरे, छोले पूड़ी हलवा, परांठे, एंड घर का जो भी मम्मी बना दे मैं खा लेती हूँ। मुझे माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। देखिए, आपकी लाइन में फिटनेस बहुत ज़्यादा मायने रखती है जी और जो फूड आपने गिनाए वो वेट गेन करने में कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प करते हैं।
जी मैं ये नहीं कह रही कि आप तीनों मील्स में सिर्फ छोले भटूरे खाइए, बट मैंने ये ऑब्जर्व करा है खुद के साथ कि अगर आप क्लीनर इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना बनाते हैं तो आपका वेट गेन नहीं होता है। जैसे अगर आपको खुद से बहुत सवाल भी पूछने होते हैं कि क्या मैं कोई इमोशंस दबाने के लिए खाना खा रहा हूँ या मैं खाने के लिए खाना खा रहा हूँ। तो मैं सब खाती हूँ, मैं घर का सारा खाना खाती हूँ, बट मैं ओवर ईट नहीं करती हूँ। मैं क्लीनर इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना बनाती हूँ। जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल ना हो। शुगर मैं नेचुरल शुगर लेती हूँ, जैसे आप गुड़ ले लीजिए या आप डेट्स ले लीजिए। एंड दही एक बहुत बड़ा पार्ट था मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। एंड घी और दही एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे मतलब हर मील में होती थी, बट जब मैंने उसके सब्स्टिट्यूट्स देखे, जैसे आपको कोकोनट कर्ड कहीं पे भी मिल जाएगी, आप घर पे भी जमा सकते हैं खुद। आई फेल्ट वे लाइटर इन माई बॉडी। और आप जब लाइट फील करते हैं आपका मैंने देखा मेरे वर्कआउट्स बेटर हो गए उससे, क्योंकि माई बॉडी वॉज फीलिंग लाइटर। द स्ट्रेंथ दैट आई फेल्ट दैट आई हैड वॉज वे मोर देन what I used to feel when I was consuming meat. And बहुत ही बड़ा मिथ है कि प्रोटीन नहीं मिलता है आपको वीगन डाइट में। आई थिंक प्रोटीन शेक से मैं शिफ्ट होके मैंने सत्तू पीना स्टार्ट किया, जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। पल्सेस ले लीजिए, आप छोले ले लीजिए, कुछ भी ले, ये सारी इन सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है। एंड उसमें मैंने देखा कि मेरे रिक्वायरमेंट्स में मीट हो रही थी, एंड मैंने मसल भी गेन करी, फैट भी लूज़ किया, एंड मेरी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हुई। अभी जैसे आप जुड़े हैं और बहुत सारे आपके फैंस हैं जो आपकी बात मानेंगे भी, ये बात अपने दोस्तों में भी आप सर्कुलेट कर रहे हैं, कोई मान रहा है आपकी बात? जी कोशिश जारी है। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि आप किसी भी इंसान को फोर्स कर सकते हैं कुछ भी करने के लिए। आप बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं दैट दिस इज़ हाउ इट हेल्प्ड मी। एंड अगर वो एक्सपीरियंस उनके साथ रेजोनेट करेगा तो वो ट्राई कर सकते हैं खुद के लिए। मैं बस ये मानती हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैंने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करी है जिसने मेरी लाइफ बदली है, मैं लोगों में बांटूँ, एंड अगर उनकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो सकती है वो हो। मैंने अपने परिवार को ज़रूर हल्का सा चेंज किया है। लॉकडाउन में मैं उनके साथ रह रही थी, तो नाउ दे आर ऑल्सो वेजिटेरियंस इफ नॉट वीगन, एंड उनकी भी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जो जैसे उनके जो ब्लड रिपोर्ट्स आ रहे थे पहले, उसमें से काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट हुई हैं, बेटर हुई हैं। जो आर्टरीज अगर आपकी जो ब्लॉक्ड होती है, क्लॉग्ड होती है, मैंने ये भी ऑब्जर्व करा है कि वीगन डाइट से वो भी खुल जाती हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने खुद के परिवार में भी ऑब्जर्व करे हैं। एंड मैं बस चाहूँगी कि आप लोग ट्राई करिए एंड खुद से पूछिए कि आपको कैसा लग रहा है। राधिका, आपने एक लाइन बोली कि जब भी हम किसी एनिमल खाते हैं या कुछ उसके, जी उसका जो आखिरी पलों के डर और एंजाइटी होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है जी body through it। ये कई बार हमने सुना, कुछ स्पिरिचुअल गुरु भी ये बातें बोलते हैं, तो जी। आपका भी कोई कनेक्शन है क्या स्पिरिचुअलिटी से? जी मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, मे बी इसीलिए मैं उस चीज़ से रेजोनेट करती हूँ। एंड या मैंने खुद के अंदर वो फ़र्क देखा था। आई यूज टू बी मोर एंशियस एंड जिटरी जब मैं नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करती थी। अब उतना नहीं फील करते हूँ, तो आई एम श्योर कोई लिंक होगा। एंड या दैट इज इट। ठीक है, चलो, थैंक यू। गुड। Good, good. Thank you so much. Thank you. Before leaving, could you please sign this campaign? Of course. हेलो राधिका जी। हेलो। तो बताइए वेगन बनने तक का सफ़र कैसा रहा आपके लिए, एंड अब कितना इजी हो गया है जब राधिका जी वेजिटेरियन हो गई हैं प्रॉपर तरीके से, कितना हेल्थ एंड फिट एंड फाइन समझती हैं अपने आप को? जी बहुत जैसे ही मैंने वीगनिज़म की तरफ ट्रांजिशन करा, मुझे अपनी हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट्स दिखने लगे, मेंटल हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट्स दिखने लगे, मेरे थॉट्स बहुत क्लियरर होने लगे, जो नेगेटिव थॉट्स थे वो भी थोड़े छटने लगे, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि फूड की इम्पोर्टेंस कितनी है। और
मुझे लगता है एक बार जब आप वो डिफरेंस अपनी बॉडी के अंदर देखना शुरू कर देते हैं, आप वापस कभी नहीं जाना चाहते दूसरी तरफ। मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी एंड जैसे ही मैंने वीगनिज्म की तरफ मैं बढ़ी आगे और उसका रिज़ल्ट देखना शुरू किया अपने अंदर, मेरा मन नहीं करा नॉन वेजिटेरियन दोबारा खाने का। और अब वो काफ़ी आसान लगता है क्योंकि मुझे पता है कि वो उसका बेनिफिट क्या क्या है और मुझे खुद फील होता है वो सारी बेनिफिट्स। जैसे आपने कहा था कि आप दिल्ली जाके मम्मी के हाथ के मतलब बहुत सारे पकवान जी। खाते हैं, मम्मी को जब बताया आपने कि आपने इस तरीके का वीगन देने का Vegetarian decision हो लिया, गया। क्या कहा मम्मी ने? मम्मी ने बोला ये क्या हरकतें हैं और क्यों करनी है, बचपन से तो खाया है, ठीक ठाक ही तो थी। बट अब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी मम्मी खुद वेजिटेरियन है और ऑलमोस्ट वीगन है। कभी कभी वो घी खा लेती हैं बस, बट उनको खुद अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी डिफरेंस महसूस हुआ। मेरे फादर को भी मैंने ट्राई करने के लिए बोला, मैं बिल्कुल कि कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करती किसी को करने के लिए, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ और ये शेयर कर सकती हूँ कि मुझे क्या बेनिफिट्स उससे फील हुए। एंड उन्होंने भी ट्राई करा एंड उनको भी काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स फील हुए एंड अब वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों राधिका जी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फीमेल एंड मेल एक्टर आपकी काफ़ी करीबी दोस्त हैं, कोई ऐसे एक्टर मेल फीमेल बोथ आप चाहेंगे कि उनको वेजिटेरियन बनाने की कोशिश आप करेंगे या आप उनको बताएंगे कि वेजिटेरियन हो जाओ, बहुत सारे फ़ायदे हैं वेजिटेरियन होने में, ऐसा कुछ? मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो सब एक्चुअली वेजिटेरियन या वीगन ही हैं, सरप्राइजिंगली। मुझे ऐसा लगता है कि वो आई थिंक आप अट्रैक्टिव ऐसे लोग कर लेते होंगे या तो, बट सरप्राइजिंगली मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो वीगन या वेजिटेरियन हैं। और मैं जैसे मैंने कहा, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहूँगी कुछ भी चीज़ करने के लिए। मैं बस बोलूँगी कि आप 1 महीने के लिए ट्राई करिए और खुद से सवाल पूछिए कि आपको कैसा लग रहा है। आप उन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो आज आपको देख रही है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच हमारी बातें सुनने के लिए। मैं बस आपके साथ हमेशा यही शेयर करती रहूँगी कि क्या चीज़ें मेरे लिए अच्छी रही हैं, किन किन चीज़ों ने मुझे बेनिफिट दिया है और अगर वो आपकी लाइफ में थोड़े से भी चेंजेस लाती हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सो आप 1 महीने के लिए ज़रूर कोशिश करिए और ख़ुद के अंदर देखिए कि आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। राधिका जी, one question. श्योर, बोलिए।